Bohra ji. Today we are presenting you a wonderful session on rhythmic breathing, popularly known as Santal Swans Preksha or box breathing. For the auspicious beginning of this session, I would like to invite TPF Femina member Garima ji from Ghaziabad to recite the Manglacharan. Over to Garima ji. Garima ji, please unmute yourself. Am I audible? Yes, Am Garima I ji, audible? yes, Garima ji, you are audible. Om Ring Namo Hare Om Ring Namo Siddhartham Om Ring Namo Ariyanam Om Ring Namo Vajrayanam Om Ring Namo Loe Sabsahu Esu Panchadaro Sabhavanasano Mangalanam Chatabe Singh Paramam Havai Mangalam Paramam Havai Mangalam. Thank you, Garima ji, for this melodious recitation. Now I would like to invite our powerful, dynamic, inspiring National Femina convener, Mrs. Rakshita Bohra ji from Hyderabad, to welcome our wonderful guests and participants. थैंक यू सो मच अर्चना जी। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में वंदन, मुनि श्री रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन, हैदराबाद में विराजित साध्वी श्री जी के चरणों में वंदन। Good morning, everyone. Jai Jinendra. A very warm welcome to one and all. It gives me immense pleasure to welcome each one of you to this beautiful morning session of Blissful Breathing, organized by Therapant Professional Forum in association with Preksha Foundation and hosted by our own TPF National Femina Wing. Today's session on Samthal Shwash Preksha and box breathing promises to be a truly enriching experience for all of us. Breathing is life, and when done mindfully, it becomes a powerful tool to balance energy and inner peace. I'd like to express my heartfelt gratitude to all the participants who have taken out their valuable time to be a part of this journey towards wellness. A very special and warm welcome and thanks to our esteemed speakers, trainers, members, and the team behind this event today, whose guidance will make this session deeply meaningful and transformative. Together, let's embrace the opportunity to breathe and center ourselves to celebrate the spirit of mindful living. Wishing you all a blissful and rejuvenating session ahead. Thank you so much. Thank you, Rakshita ji. We are really honored to have the gracious presence of our TPF National President Himmat Mandod ji in this event. Himmat ji is an influential personality. His honest hard work and dedication, your inspiring leadership, valuable mentorship, and motivation is turning TPF vision into reality. Humble request to our TPF National President and one of the most spiritual soul, I would say, to please share your golden words. Over to Himachi. Am I audible, Archana ji?
Yes, yes. गुरुदेव के चरणों में वंदन। टीपीएफ के आजादी पर्यवेक्षक डॉक्टर रजनीश मुनि के चरणों में वंदन। तेरापन प्रोफेशनल फोरम के नेशनल ऑफिस बेरर्स, जोन हेड्स, branch presidents, and the whole organizational team. Special mention to our spirituality project chairman, Dr. Dinesh Ji Dhoka, Archana Ji, who has been heading this project for a long time, and our whole Femina team headed by Rakshita Ji Bohra, और आज के हमारे मैं कह दूं ट्रेनर सुधा जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। पधारे हुए सभी श्रावक श्रोतागण। धर्म मुझे क्या देगा, ये एक प्रश्न सभी को रहता है कि भाई धर्म मुझे क्या देगा, मोक्ष देगा। मोक्ष तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तब आएगा। लेकिन महाप्रज्ञ जी, जिनका अभी 3 दिन पहले हमने 16वां महाप्रयाण दिवस मनाया था, उनका हमेशा था कि धर्म की कुछ इतनी सारी इकाइयां ऐसी है जिनका हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। तो उसमें आई थिंक उस लिस्ट में शायद सबसे पहले श्वास रिलेटेड जो अपने एक्टिविटीज होती है, उनमें अपने को रिजल्ट जो है इंस्टेंटली मिलते हैं। उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है और इजी टू डू इट है समताल श्वास परीक्षा। और मैंने कुमार शर्मा जी को काफी नजदीक से देखा है कि वो परीक्षा ऐप के द्वारा पिछले 2-3 सालों में कितने सारे हजारों लोगों को जोड़ा है, स्पेसिफिकली इन एंड अराउंड द एक्टिविटी ऑफ समताल श्वास परीक्षा। ये इसलिए हुआ है क्योंकि इट्स ए वेरी पावरफुल रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी। एंड जो आज की जो समस्याएं हैं, क्रोध का कह दो, अवसाद का कह दो, डिप्रेशन में जो लोग जाते हैं, या बाकी जो इंसोम्निया नींद नहीं आती लोगों को, ये सब जो तकलीफें हैं, इनका सब जो कारगर इलाज है समताल श्वास परीक्षा। तो आई एम ग्लैड टीपीएफ फेमिना, टीपीएफ स्पिरिचुअल विंग organizing this program along with Preksha Foundation, and all the participants. I am sure you're going to get a lot out of this, and I welcome Sudha ji once again. Om Arham. Thank you, Himmat ji. In this very morning, it's very nice to hear such wonderful, encouraging words from you. Moving ahead, Samtal Swans Preksha is a gateway to meditation. It helps to cope with panic and stress. It helps to sleep when you are having insomnia. It helps to control hyperventilation as you instruct your lungs to breathe rhythmically. It helps to refocus when you are having a busy and a stressful day. Today, we are really delighted to have remarkable, eminent expert trainer, Mrs. Sudha Jain ji, who will share her wisdom with us. I would like to invite Sneha ji from Navi Mumbai to throw some light on Sudha ji's spiritual journey. Over to Sneha ji. Sneha ji, please unmute yourself. स्नेहा जी को को-होस्ट बना दीजिए। Mohit ji. I can't see Sneha ji here. Sneha ji is in the spotlight. Okay. सादर जय जिनेंद्र एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी। सभी को पता है कि हमने इतना सुना आज की व्हाट इज समतल श्वास। हम सुबह सुबह आज पहली बार फेमिना टीम ने इतना मॉर्निंग सेशन रखने की कोशिश की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लेट्स मेक आवर फेमिना टीम, आवर all the members to understand what is breathing, and what is the right way of breathing. And without trainer, it is not possible to learn, everybody can't be trained in this. So we have Sudhaji Jain. She is a Preksha International trainer and coordinator from Preksha Meditation. She has done immense workshops from Kolkata. She has done a lot of workshops from the Kolkata. She's a renowned Preksha meditation trainer since a very long time, and conducted numerous international and national workshops. And she wants to share these benefits of meditation to every individual in the world. Her main motto is looking
like to get everybody understand what is actual breathing. It's not just simple breathing, but to understand what is your real shwas. That's called Shamtal Swas. And she has done various meditation workshop with Jito, cafes, Jain Mahila Mandals, Kishore Mandal, and also our future young minds of TPF Future Up. Since 2012, she has been serving as a coordinator of Preksha Vahini Group. She has been invited to the speak. She has been invited recently in the Sunday YouTube Live Preksha Foundation program, where she had imparted her wisdom to wider audience, not only Jains but non-Jains as well. Her dedication to holistic well-being led her to become a certified Neuro Yoga teacher also. She is on a mission to guide individuals in finding inner peace and happiness through the tool called box breathing. She has conducted various multiple workshops, as I already told you. This topic of Shamtal Swas is very close to her heart, and hence many corporate houses like Global Linker, Uknove, Lending Card has asked her to join for them to give this amazing, Shamtal Swas and this book, Preksha meditation app to other and non-Gen also. So recently she just collaborated with Jaya Sanskriti, a venture by Jaya Kishori, and she is going to be providing personal consultation one-on-one basis to Jaya Sanskriti. So let's join our hands on this transformative journey of Preksha meditation to experience the harmony of our body, our mind. She says, Har Dhyan, Preksha Dhyan, Har Shwas, Shamtal Swas. So welcome Sudha Ji Jain. Thank you, Snehaji. Now the wait is over. Humble request to Sudhaji to train us on this life transforming technique. Over to Sudhaji. Thank you so much, Sneha ji, for such kind words and a smiling introduction. Thank you so very much. महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर. My humble salutations at the divine feet of my Guru, who is the pioneer of this beautiful meditation technique, Acharya Sri Mahapragya Ji. My humble salutations at the divine feet of my Guru, who is the pure source of divine love, Acharya Sri Mahashaman Ji. My humble salutation to Dr. Muni Kumar Shaman Ji, our mentor, who is guiding us all to walk with a vision. Om Arham, and a very good morning to each and every one of you. And thank you so much, Archana ji, Kanchan ji, Rakshita ji, for this prestigious TPF platform कि जहां मैं आप सब के साथ अपनी लर्निंग शेयर कर पाऊं. हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ ग्राउंड रूल्स सेट कर लेते हैं. ओके, जस्ट 3 ground rules. Can I share my rules? Number 1 is you have to put your cameras on. Let me see in the gallery view. Okay. Thank you, Santosh ji. If comfortable, please put your cameras on. Thank you, Rupa ji. Thank you, Madhu ji. All right. Rule number 2, अगर मैं जो भी आपके साथ शेयर करूं आपको लगे कि आई एम मेकिंग सम सेंस, आप वर्चुअली या ऐसे भी मुझे एक थम्स अप दिखा सकते हैं. इट विल बूस्ट माय कॉन्फिडेंस. एंड नंबर 3, लाइक दिनेश जी, आई वुड लव एवरीवन टू हैव अ स्माइल ऑन द, उनके चेहरे पर एक अच्छी मधुर मुस्कान, लाइक अर्चना जी, दिनेश जी. और ये रूल बहुत कंपल्सरी है. थैंक यू हिमांशी जी, थैंक यू सो मच. सो गुड टू गो. कर सकते हैं हम ये 3. थैंक यू सो मच श्वेता जी. ऑल राइट. तो हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सबसे जानना चाहूंगी वन वर्ड इंटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग दिस ब्लिसफुल ब्रीदिंग वर्कशॉप. इस आज सुबह, जैसे कि अभी बताया स्नेहा जी ने, कि पहली बार हम सुबह वर्कशॉप कर रहे हैं. तो जो आपकी, आई थिंक मेरी अर्चना जी से बात हो रही थी, शायद 3000 ऐसा आपका कैपेसिटी TPF फेमिना, राइट? अगर उसमें से 65 जन अभी सुबह सुबह जुड़ रहे हैं
तो व्हाट इज योर वन वर्ड इंटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग दिस वर्कशॉप? आपकी क्या आशाएं हैं, क्या कारण है कि आपने आज ये सुबह का वर्कशॉप ज्वाइन किया? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। लर्निंग समथिंग न्यू, स्नेहा जी कह रहे हैं। ओके, लेट मी रीड द आंसर्स। लर्निंग समथिंग न्यू, अच्छा, ये तो हमेशा होना चाहिए। वी शुड बी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। हमको जिंदगी में हमें गेट आउट ऑफ द बेड, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है संडे के दिन। ओके, टू मीट यू, थैंक यू सो मच कंचन जी। ऑलराइट, नो मोर अबाउट ब्रीदिंग। और कुछ नहीं है, उम्मीद है। क्या चाहिए, क्यों हमको ब्रीदिंग सीखना है, उससे क्या होएगा? वैसे आज आप सब ने मेरा काम इतना आसान कर दिया। मुझे समताल श्वास, खाली एक स्नेहा जी जो बोल रहे थे, मुझे सिर्फ दो ही चीज करनी है। एक समतल नहीं है, समताल श्वास प्रेक्षा है, वो सिखाना है। और एक ब्रीदिंग कैसे करेक्ट करते हैं, सिर्फ ये दो ही सिखाना है। उसके बेनिफिट्स क्या है, बहुत अच्छे से आप सबने बता दिया। यू ऑल हैव मेड माई enjoy your smile. Okay, thank you so much. To know more about समताल श्वास प्रेक्षा, क्या होएगा समताल श्वास प्रेक्षा करने से? आपको क्या लगता है, अगर आप सीखेंगे तो उससे क्या होएगा आपकी लाइफ में? क्या चाहिए आपको? टू मोर, टू सम न्यू चेंज इन लाइफस्टाइल, ओके, बैलेंसिंग, पीसफुल डेज। आप बाकी लोग भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो ऑन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप आंसर्स दे सकते हैं। पीस, ओके, स्ट्रेस फ्री। श्वेता जी पिपाड़ा कह रहे हैं, रेखा जी कह रहे हैं पीस, पीसफुल डेज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर फ्लडिंग द चैट बॉक्स विथ योर ब्यूटिफुल एंड क्विक आंसर्स। तो हम सब जानते हैं कि यू ऑल आर प्रोफेशनल्स, है ना, आपकी लाइफ में एक मुकाम पर। हम सब जानते हैं कि कितनी भी मटीरियलिस्टिक थिंग हमारे पास हो, अगर आप BMW में जा रहे हो लेकिन खुश नहीं हो तो इट डजेंट मेक सेंस, राइट? तो सबसे जरूरी क्या है? मन की शांति। और वो हमको मिलेगी जो आज हम ये प्रयोग सीखने वाले हैं उससे। सो थैंक यू। उससे पहले हम आगे बढ़े, जस्ट रब योर हैंड्स। जैसे कि अभी सबने बताया, भी मैंने भी आपको बोला, उसमें से हम 65-70 जन जुड़े हैं। तो पैट ऑन योर बैक कि आपने, जैसे दिनेश जी ने कहा, गेटिंग आउट ऑफ द बेड, आप उठे एंड यू स्टार्टेड दिस ब्लिसफुल जर्नी विद ब्लिसफुल ब्रीदिंग जो आप सीखने वाले हैं। सो रब योर हैंड्स नाइस एंड वार्म, रब 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 एंड शाबाश। सुधा शाबाश, मेरा नाम नहीं, आपको अपना नाम लेना है। वेल डन कि आप उठे भी, आपने जूम ऑन भी किया और अब आप सीख के करने भी वाले हो। सो और एक बार कर सकते, इफ यू लाइकिंग दिस वन मोर टाइम। As we all know, the journey of 1,000 miles starts with a single step, and you have taken this one big step. All right, very good. चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, आई लाइक स्टोरीज। कैन आई शेयर ए स्टोरी विथ यू ऑल? कैन आई शेयर ए स्टोरी विथ यू ऑल? Yes, please. ओके, थैंक यू। आजकल स्टोरी, इंस्टा स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, ये सब का जमाना है, लेकिन आई स्टिल लाइक स्टोरीज। एक बार एक पेड़ के नीचे एक कैमल और उसकी बेबी, मतलब मम्मा कैमल और बेबी कैमल बैठे थे और बातें कर रहे थे। तो जो बच्चा था वो अपनी मम्मा को पूछता है कि मम्मा, हमारे बच्चे भी हमको बहुत सवाल पूछते, राइट, बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है। तो वो वैसा भी उन लोगों में भी होता है। तो वो पूछता है अपनी मम्मी से कि वाई डू वी हैव हम, हमारे को हम क्यों दिया है? तो मम्मा बोलती है क्योंकि हम रेगिस्तान में रहते हैं, वहाँ पानी कम होता है, तो हम स्टोर कर सकते हैं कि हम सरवाइव कर सके थोड़े पानी में। ठीक है। फिर और एक सवाल कि ये तो आपने बताया, अब आप बताएं कि हमारे इतने लंबे और राउंड क्यों है पैर? तो मम्मा ने बोला कि डेजर्ट बहुत बड़ा होता है, रेगिस्तान, और हमको बहुत चलना पड़ता है, इसके लिए हमको लंबे और गोल पाँव मिले हैं। ओके, ठीक है। फिर उसने बोला कि हमारी आई लैशेज इतनी बड़ी क्यों होती है? आपको पता है कैमल के बारे में ये सब बातें? यू नो अबाउट इट? तो मम्मा बोलती है कि इसलिए आई लैशेज बड़ी है कि रेगिस्तान में बहुत लू चलती है, आंधी आती है, हवा उड़ती है, तो वो हमारी आंखों में नहीं जाए, इसके लिए हमको आई लैशेज दिए गए हैं। तो वो बेबी सोचता है कि आपने बताया हम है कि हम पानी स्टोर कर सके, हमारे पैर लंबे हैं इसलिए कि हम लंबा चल सके, हमारी आई लैशेज लंबी है इसलिए कि हम
प्रोटेक्टेड रहे, रेत हमारे उस आईज में नहीं जाए। फिर वो एक सवाल पूछता है, तो फिर हम यहाँ जू में क्या कर रहे हैं, हम रेगिस्तान में क्यों नहीं है? और मेरा ये कहानी आपको बताने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि जब हमको श्रेष्ठ जीवन मिला, श्रेष्ठ कुल मिला, श्रेष्ठ धर्म मिला, श्रेष्ठ गुरु मिले, फिर भी हम इतने परेशान क्यों हैं, हम आनंदित क्यों नहीं है? वाई डोंट वी फील ब्लेस्ड? वाई डोंट वी फील कि वी आर लिविंग आवर बेस्ट लाइफ? हम क्यों इतने परेशान उलझे रहते हैं? आपको ऐसा लगता है सब कुछ होते हुए भी कभी कभी लगता है कि हम बहुत परेशान हैं? डू यू ऑल फील सो कि आफ्टर अचीविंग सो मच फिर भी कभी कभी? Yes, sometimes. राइट। क्यों? उसका कारण क्या हो सकता है दिनेश जी? ऐसा क्यों होता है? Some challenges will keep coming in life. चैलेंजेस तो होने चाहिए लाइफ में, नहीं तो हम कैसे सीखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? चैलेंजेस तो होने ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दिस इज हाउ वी इवॉल्व, राइट? अगर लाइफ बहुत प्लेन रहेगी तो क्या है, रोज सुबह उठेंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। व्हाट विल बी द आउटकम अगर चैलेंजेस नहीं रहेंगे? और कोई कुछ बताना चाहेंगे क्यों परेशान रहते हैं? क्या कारण हो सकता है? बिकॉज वी रिएक्ट टू एवरीथिंग, राइट? रिएक्शन का कारण क्या हो सकता है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। हम इसलिए परेशान रहते हैं दोस्तों, बिकॉज ऑफ आवर ओन परसेप्शन, नॉट एज सेटिस्फैक्शन। ओके, नाइस आंसर्स। ऐसा है कि हम इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हम वर्तमान में नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा या तो आगे की सोचते हैं या पीछे हमारे साथ क्या हुआ हम वो सोचते हैं। ऐसा होता है ना कि इसने ऐसा क्यों कहा, कल को मेरा ये, मैंने एक अप्लाई किया कहीं पे, मुझे जॉब नहीं मिला, तो कल को मेरा जॉब नहीं रहा तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स होती है अगर हम ज्यादा सोचते हैं आगे और पीछे के लिए। क्या वो एक कारण है? मन शांत नहीं है, मंजू जी कह रहे हैं। ओके, मन शांत नहीं होने का मंजू जी एक ही कारण है कि हम वर्तमान में नहीं रहते हैं। करेक्ट? अगर अभी आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, क्या मुझे कोई चिंता हो रही है? लेकिन इससे पहले हो रही थी, कल के मेरा नेटवर्क सही नहीं हुआ, मैं ठीक से बोल पाई कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सोच रही थी पहले, बाद में आगे क्या होने वाला है। राइट? सो अगर मुझे समराइज करना हो इतनी देर को, तो ये है कि ध्यान क्या है? वर्तमान में रहना। वेरी सिंपल, वर्तमान में रहना। और मैं जिनको आज ये ध्यान के बारे में बता रही हूँ, आप सब तो ये ऑलरेडी कर ही चुके हो, क्योंकि आपने जो लाइफ में मुकाम हासिल किया है, आपने बहुत ध्यान से सुना है, पढ़ा है, लिखा है, इसीलिए यू ऑल आर एट दिस लेवल, प्रोफेशनल्स, राइट? यू हैव सम डिग्रीज जिसके लिए आपने ध्यान से पढ़ा, राइट? लेकिन अब क्या हो गया, क्यों परेशान है? क्योंकि हम बहुत मल्टीटास्कर्स हो गए। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। आप मुझे बताएं कि अगर आप एक साथ दो गाने सुन रहे हैं, कैन यू एंजॉय दोनों गानों को एंजॉय कर सकते हैं? कर सकते हैं? रक्षिता जी कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। राइट? हम लेडीज भी करते हैं, एक गैस पे चार चीजें चढ़ाते हैं, क्या हम बराबर से वो काम कर पाते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमारा अटेंशन बहुत जगह चला जाता है। तो डाइवर्ट हो सिंग, जाता। राइट। तो अभी ये ध्यान हमको क्या सिखाता है? फोकस करना, अटेंशन ऑन वन सिंगल थिंग। आप सबने कोई एक लक्ष्य बनाया था, उसके प्रति फोकस रहे थे और वो आपने अचीव किया। राइट? अगर आप एक ही टाइम सोचते मैं सीए भी बन जाऊं, मैं एमबीए भी कर लूं, डॉक्टर भी बन जाऊं, लॉयर भी बन जाऊं, कहीं पहुंचते? नहीं ना, नहीं पहुंचते। हम सब बन सकते थे। ऑल राइट। सो द मेन पॉइंट ऑफ माई दिस होल डिस्कशन इज कि हमको सिंगल फोकस होना सीखना पड़ेगा, और उसमें आपकी मदद करेगा समताल श्वास प्रेक्षा। तो चलिए अब हम समताल श्वास प्रेक्षा को समझते हैं। कैन आई शेयर माई स्क्रीन? अर्चना जी, कैन आई शेयर माई स्क्रीन? Yes, 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 you can. please. गिव मी अ मोमेंट टू शेयर माई स्क्रीन विथ यू ऑल।
ऑल राइट, सो वेलकम ऑलरेडी हो चुका है अपना। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, समताल श्वास प्रेक्षा, 3 वर्ड्स राइट। पहले हम प्रेक्षा को समझ लेते हैं। वैसे अभी आप लोग इतना उम्दा काम कर रहे हैं, एवरी फ्राइडे आई सी की प्रेक्षा ध्यान के सेशन होते हैं। आप सबको पता ही है प्रेक्षा क्या है। प्रेक्षा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, कोई नई विधा भी नहीं है। इट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग हमारे फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ के टाइम पे थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि हम इसका एसेंस लूज करते जा रहे हैं। तो हमारे जो नाइन्थ सुप्रीम हेड ऑफ तेरापंथ आचार्य श्री तुलसी, उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य 10th सुप्रीम हेड ऑफ तेरापंथ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को निर्देश दिया, मार्गदर्शन दिया, और गुरुदेव ने कई कई सालों तक अपने ऊपर प्रयोग किए। उन्होंने जैन लिटरेचर को पढ़ा और इन सब का निचोड़ में हमको 1975 में इसका नामकरण हुआ प्रेक्षा ध्यान। अब प्रेक्षा ध्यान वर्ड का मीनिंग क्या है हम समझ लेते हैं। इक्षा का मीनिंग होता है, ये इक्ष धातु से बना है, इसका मतलब होता है देखना। पर इसके साथ जब प्रय जुड़ा, प्रीफिक्स प्रय, तो बना प्रय प्लस इक्षा। प्रेक्षा मीन्स गहराई से देखना, टू परसीव प्रोफाउंडली विदाउट एनी अटैचमेंट और अवर्जन्स, बिना लाइक और डिसलाइक के देखना। और हमारा शायद सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम हर चीज के पीछे कुछ लाइक या डिसलाइक जोड़ देते हैं, राइट। तो जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप कल्टीवेट करेंगे ये एट्रीब्यूट अपने आप में, कि आप हर चीज को जैसा है वैसा देखना शुरू करेंगे। अब हम प्रेक्षा का मीनिंग समझ गए। मैंने बहुत शॉर्ट में जो बेसिक मीनिंग आपको बताया है, बाकी क्लासेस होती है या हमारी बाकी क्लासेस होंगे उसमें भी हम डिटेल में समझेंगे। समताल श्वास प्रेक्षा। नाउ श्वास, ब्रेथ, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आपको क्या लगता है ब्रेथ क्या है? व्हाट इज ब्रेथ? व्हाट इज ब्रेथ? आप सबको क्या लगता है? लक्ष्मी लाल जी गांधी जी, आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है श्वास क्या है? व्हाट इज ब्रेथ? लाइफ, लाइफ, करेक्ट, बहुत सही, सबका यही आंसर होगा, ब्रेथ इज लाइफ। क्योंकि हमारी जिंदगी शुरू होती है पहले इनहेल से और हमारी जिंदगी खत्म होती है लास्ट एक्सहेल पे। और हमारे शरीर की कितनी विचित्र मैकेनिज्म आप देखिए। हमारे खाने के लिए, हमारे पीने के लिए, इवन हमारे सोचने के लिए भी स्टोर हाउस है, लेकिन हमारी ब्रीदिंग के लिए कोई स्टोर हाउस नहीं है। आप श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, तभी आप दूसरी श्वास ले सकते हैं, राइट, है ना। क्या आप श्वास को स्टोर कर सकते हैं कृष्णा जी? नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कर सकती थी कि मुझे अभी सेशन देना है, मैं 1 घंटा की ब्रीदिंग पहले करके रख लूं कि बाद में मुझे श्वास नहीं लेनी पड़े, सिर्फ बोलना और समझाना पड़े। रेखा जी, कर सकते हैं हम ऐसा? स्टोर कर सकते हैं? सो देयर इज नो स्टोर हाउस। सब चीजों के लिए है, श्वास के लिए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि श्वास इज द मोस्ट प्रेजेंट थिंग, सिर्फ प्रेजेंट में ही होता, राइट। हम श्वास सिर्फ प्रेजेंट में ही ले सकते हैं, ना आप पहले लेके रख सकते हैं, ना आगे के लिए लेके रख सकते हैं। तो मोस्ट प्रेजेंट थिंग, तो मतलब जो मैंने कहा था वर्तमान में रहना। तो अगर हम फोकस करते हैं ब्रीदिंग पे, तो हम नेचुरली बाय डिफॉल्ट हम वर्तमान में ही, राइट। लेकिन आप सब कहेंगे हम जितना भी वर्तमान में रहे, विचार आते ही रहते हैं, हम पीछे चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। लेकिन ब्रेथ हमारा एंकर है, हमको अपने आप को वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए, अवेयरनेस में लाने के लिए। अगर मुझे सिंपल लाइन में कहना हो, ब्रेथ इज अ रीसेट बटन। जितना भी आप स्मृतियों में जाएं, चिंतन में जाएं, रीसेट करना है। जैसे फोन में होता है ना रीसेट बटन, वैसे ही ब्रेथ हमारा रीसेट बटन है। ठीक है, चलिए मैं फिर से अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ब्रेथ क्या है हमको पता है। अभी आते हैं हम हमारे आज के हीरो ऑफ द क्या बोलते हैं सेशन। द पावर ऑफ मेडिटेशन। सावधान श्वास परीक्षा को जैसे अर्चना जी ने भी बताया, बॉक्स ब्रीदिंग भी बोलते हैं, रिदमिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, और हम इसको ध्यान का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। क्योंकि जैसे हम अभी मैंने आपको बताया कि हम बहुत कुछ बन रहे, सीए बन रहे, डॉक्टर बन रहे, ये बन रहे,
लेकिन हम शांत नहीं बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहे हैं लेकिन शांत नहीं बन रहे हैं। और अगर उनको कहें शांत करने बनने के लिए आप मेडिटेशन कहें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% हमको ये टाइम मौका मिलता है सुनने के लिए कि हमसे होता नहीं है, नॉट माई कप ऑफ टी, या टाइम नहीं है। तो दोस्तों, ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस शायद इसीलिए डिजाइन की गुरुदेव ने कि आगे आने वाला वक्त इतना बिजी होगा कि उनको छोटा छोटा टूल के जैसे दे दीजिए। तो ये वाला कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। हम ब्रीद इन ब्रीद आउट तो हमेशा करते ही हैं, फिर हम उसके साथ कुंभक जोड़ देते हैं और प्रेक्षा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, टू परसीव प्रोफाउंडली विदाउट लाइक एंड डिसलाइक, मतलब देखना। तो जब हम अपनी श्वास को देखने लगते हैं तो ये बन जाता है समताल श्वास प्रेक्षा। समताल, सम प्लस ताल, सम मीन्स इक्वल, ताल मीन्स अवधि। जब हम इक्वल ड्यूरेशन में ब्रीद इन, फिर उसको होल्ड करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमने इनहेल किया फॉर द 5 सेकेंड, आप समझिए, फिर हम अंदर ही 5 सेकेंड तक रोकेंगे, फिर हम 5 सेकेंड में श्वास को छोड़ेंगे, फिर छोड़ के बाहर ही 5 सेकेंड तक रोकेंगे। तो हमने क्या किया, वी मेड अ बॉक्स विथ आवर ब्रेथ, राइट? इसलिए इसको बॉक्स ब्रीदिंग भी बोलते हैं। और हमने अपनी श्वास को रिदमिक किया, इसलिए इसको रिदमिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं। और इसको नेवी सील ब्रीदिंग भी बोलते हैं। अभी तो पहलगाम में जो हुआ आप जान रहे हैं, तो हम सोचते हैं हमको बहुत स्ट्रेस है। आप सोचिए, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जो वॉर में है, वो सोल्जर से ज्यादा स्ट्रेस हमको नहीं हो सकता। हो सकता है? हो सकता है अर्चना जी, हमको ज्यादा स्ट्रेस है कि उनको? तो जो यूएस नेवी कमांडोज हैं, उनको भी ये ब्रीदिंग कराई जाती है टू फील काम एंड कंपोज्ड। सो हाउ पावरफुल दिस सिंपल प्रैक्टिस इज, आप इसी से समझ सकते हैं कि नेवी सील कमांडोज भी इस प्रैक्टिस को करते हैं। ये आप कब कर सकते हैं? ये आप कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, और कोई भी कर सकता है। खाली क्या करना है, आपको आराम से बैठना है। इवन आप कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। अगर हम हाथों की मुद्रा लगा ले तो थोड़ा और बेनिफिट हो जाएगा। बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू ब्रीद इन थ्रू बोथ योर नॉस्ट्रिल्स। हमको नाक से ही श्वास लेना है और नाक से ही श्वास छोड़ना है। क्यों करना है नाक से ही, अभी हम जब आगे जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया, इसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज ब्रीद इन स्लोली थ्रू योर नोज फॉर 5 काउंट्स, फिर हमको अंदर रोकना, फिर बाहर छोड़ना 5 काउंट्स में, फिर बाहर ही रोकना। ऑल राइट? कौन कर सकते हैं? मैंने कहा सब कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई हार्ट पेशेंट है, किसी को अस्थमा हुआ है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है 3 मंथ्स एंड मोर, या किसी की कोई रीसेंट सर्जरी हुई है, तो वो फोर्सफुली ब्रेथ को रोके नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। यू कैन स्टार्ट विथ लाइक 2 सेकेंड्स में लिया, 2 सेकेंड्स में रोका, फिर छोड़ा। फोर्सफुली नहीं करना है, ओके? सिर्फ आप इनहेल एक्सेल भी कर सकते, जिनको कोई भी हेल्थ कंडीशंस ऐसी हो। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर में आपको थोड़ा कुछ समझाने का प्रयास किया, एक बार एक ऐसा ही वर्कशॉप में मैंने किसी को पूछा कि, और आप सबने भी सुना ही होगा, किसी न किसी ने आपको पूछा ही होगा, कहीं ना कहीं पूछा ही होगा कि अगर आप स्विमिंग की बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं तो क्या आप फर्स्ट आ सकते हैं? क्या आप आ सकते हैं फर्स्ट? अगर आपने स्विमिंग की बहुत सारी, प्रिया जी कह रहे नहीं आ सकते। स्विम करना पड़ेगा। राइट। तो रक्षिता जी, मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैंने बहुत पहले ऐसा किया तो मैंने हाथ खड़ा किया और मैंने बोला हाँ मैं फर्स्ट आ सकती हूँ। तो स्पीकर वाज लाइक कैसे? तो मैंने कहा अगर वो निबंध प्रतियोगिता होगी तो मैं फर्स्ट आ सकती हूँ। इसने ऐसे कंपटीशन आ सकती हूँ, लेकिन अगर रियल में आपको करना है स्विमिंग तो आपको पूल में उतरना ही पड़ेगा। सो मुझे ऐसा लगता है ये सेशन, जब मैं अर्चना जी से बात कर रही थी, लेट्स जस्ट नॉट पास ऑन द इंफॉर्मेशन। सुनना हम बहुत करते हैं, एक्सपीरियंस इज द मेन थिंग। सो ये सारी भूमिका मैंने इसलिए बनाई कि आपको ऐसा लगे कि नहीं ये हमको करना ही चाहिए। जानना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको अनुभव करना इज द मेन थिंग। तो चलिए हम पहले एक छोटा सा प्रयोग, क्योंकि शायद कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए ये नया होगा। तो सिट नाइस एंड टॉल। अगर किसी ने चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार ले, क्योंकि भीतर की दुनिया देखने के लिए चश्मों की जरूरत नहीं है, बंद आंखें ही काफी है। हाथों की मुद्रा हम ज्ञान मुद्रा, द टिप ऑफ योर इंडेक्स एंड थंब टचिंग ईच अदर।
आपके अंगूठे और तर्जनी का अग्र भाग आपस में मिला हुआ, वेरी नाइट कृष्णा जी। पुट लिटिल प्रेशर सो यू कैन फील द वाइब्रेशन, आप उन स्पंदनों को फील कर सके। नाउ टर्न योर पाम टुवर्ड्स द सीलिंग और दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें। अभी आंखें, चलिए एक बार, सुबह सुबह का टाइम है, हम शायद अच्छी नींद से उठे फिर भी रहते हैं, 3 बार स्क्वीज योर आईज एंड रिलीज, स्क्वीज रिलीज, स्क्वीज रिलीज। नाउ जेंटली क्लोज योर आईज, कोमलता से आंखें बंद। मेक श्योर कि आपकी स्पाइन, नेक और हेड एक सिंगल लाइन में है। कंधों को ढीला छोड़ें, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, and let there be a gentle smile on your face। और सारा ध्यान सिर्फ अपनी आती जाती श्वास पर। देखिए कि कैसे जो श्वास आप भीतर ले रहे हैं उसका आपके नॉस्ट्रिल पे स्पर्श, टच थोड़ा सा गर्म है कि ठंडा है, वो शायद थोड़ा ठंडा होगा। और जो श्वास आप छोड़ रहे हैं वो थोड़ी वार्म होगी, उसकी गर्माहट का अनुभव करें। देखिए कि कैसे जब आप श्वास ले रहे हैं आपके पेट की मांसपेशियां फूल रही है लाइक बलून, और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है लाइक बलून। सारा ध्यान सिर्फ अपनी आती जाती श्वास पर। हर जाती हुई श्वास के साथ शरीर से थकान, मन से बोझ सब दूर जा रहा है। यू हैड ए गुड स्लीप, लेकिन शायद रॉन्ग पोस्चर की वजह से शरीर में कहीं कोई अकड़न जकड़न हो सकती है। तो हर जाती हुई श्वास के साथ अपने शरीर को शिथिल, रिलैक्स करिए। और हर आती हुई श्वास के साथ अनुभव करें कि पूरा शरीर, शरीर का एक एक रोम, ईच एंड एवरी सेल इन योर बॉडी इज फिल्ड विथ प्राणा, वाइटल एनर्जी से एकदम भर गया है एक एक सेल। ईच एंड एवरी सेल इज वर्किंग फॉर योर बेस्ट। अब हम समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग करेंगे। समताल श्वास परीक्षा के प्रयोग के लिए अपनी श्वास को मेरी आवाज के साथ जोड़े एंड जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। इनहेल, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold। भरे श्वास भीतर ही रोकें, छोड़े श्वास बाहर ही रोकें। भरे श्वास भीतर ही रोकें, छोड़े श्वास बाहर ही रोकें। इनहेल, hold, exhale, hold,
Inhale. Hold. Exhale. Hold. Inhale. Hold. Exhale. Hold. One last time. Inhale. Hold. Exhale. Hold. Relax and resume your normal breathing. अपनी श्वास को उसकी स्वाभाविक गति पर आने दे. टेक योर ओन टाइम. और आपके शरीर पर, मन पर जो भी परिवर्तन हुए हैं, उस एक एक परिवर्तन को अक्नॉलेज करिए. शरीर पहले से ज्यादा स्थिर, मन पहले से ज्यादा शांत और प्रसन्न. इसे स्थिरता और प्रसन्नता, शांति के साथ, आई लाइक दैट स्माइल ऑन योर फेस संतोष जी, उसको बनाए रखे. व्हेन यू फील रेडी एंड कंफर्टेबल, धीरे धीरे भूमि दर्शन करते हुए, लुकिंग एट द फ्लोर, धीरे धीरे जेंटली ओपन योर आईज. सो हाउ डू यू ऑल फील? कुछ विचार आ रहे थे? आई कैन सी द स्माइल ऑन प्रियंका जी फेस, विकास जी फेस, अर्चना जी. आई लाइक दैट स्माइलिंग, सबके स्माइलिंग फेस. तो कुछ विचार आ रहे थे? श्वेता जी, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, हाउ आर यू फीलिंग? कुछ विचार आ रहे थे जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे कि मन इधर उधर भाग रहा था? स्नेहा जी बोल रहे नहीं आ रहा है. दैट्स वेरी गुड. थैंक यू सो मच प्रियंका जी. ओके, नो थॉट्स. सो सारा No time to think over the thoughts. राइट, क्योंकि हमारा सारा ध्यान इस वर्तमान मोमेंट, हमारे श्वास पे था. और मैंने आपको प्रेक्षा का मीनिंग बताया, गहराई से देखना विदाउट एनी लाइक्स एंड डिसलाइक. तो वर्तमान में रहना ध्यान है, श्वास है. और श्वास वो एक ऐसी चीज है जिसके प्रति हमारा कोई लाइक डिसलाइक है ही नहीं, है ना. हम ऐसा नहीं बोलते आज अच्छी श्वास आई थी, ये श्वास अच्छी नहीं है, छोड़ दो, नहीं आती तो अच्छा होता. किसी कोई सोचता है ऐसा कि ये श्वास नहीं आए तो अच्छा है? कोई नहीं सोचता, है ना. इसके प्रति हमारी लाइक डिसलाइक है ही नहीं, और इसके प्रति हमारी अवेयरनेस है ही नहीं. आपको मैं बता दूं दोस्तों कि बीमार होना और बीमारी से बाहर होना, उसका माध्यम है हमारी श्वास. इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट स्क्रीन है, बट आई लाइक, अगर मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूँ चलेगा? आई लाइक टू कनेक्ट विद पीपल. तो मैंने जैसे आपको साइंटिफिकली बताया था कि हम साइंटिफिक में जब बात करेंगे कि हमको नाक से श्वास क्यों लेना चाहिए, तो हम जब नाक से श्वास लेते हैं, हमारी तीन चीजें यहीं पे हो जाती है. हमारी बॉडी इतनी वेल डिजाइंड है. आप सोचिए कि इतना पोल्यूशन है, लेकिन हम सब जी रहे हैं और स्वस्थ हैं ना, हम बीमार नहीं पड़ रहे. क्यों? क्योंकि जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स हैं हमारे नाक में, आप देखिए टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम सीलिया बोलते हैं, और म्यूकस भी है. तो वो क्या करते हैं, वहीं पे ट्रैप कर लेते हैं जो भी बाहर की इम्प्योरिटीज हमारी श्वास में हवा के साथ आती है, वो वहीं पे ट्रैप हो जाती है. लेकिन कुछ लोग, जैसे कि अभी पहलगाम में हुआ कि कुछ आतंकवादी उस बॉर्डर को क्रॉस करके आ भी जाएं, वो फिल्टरेशन में नहीं पकड़े जाएं, तो वो जो म्यूकस होता है वो उनको वहीं पकड़ लेता है. और आप जैसे देख रहे हैं अभी बहुत गर्मी है, कोई जगह होगी जहाँ बहुत ठंड है, और हमारा बॉडी टेम्परेचर एक एक लेवल पे मेंटेन होना चाहिए. तो हमारा उस हवा जो ठंडी या गर्म होती है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल भी यही हो जाता है. इसलिए हमेशा हमेशा नाक से ही श्वास लेना चाहिए. मुंह से श्वास लेना, उसको शायद मुझे लगता है जैसे सेकंड हम
बोलते हैं ना सेकंड प्लान क्या है या सेकंड स्टेप नहीं रखा है, लेकिन यूज नहीं करना चाहिए। जब ऐसी कोई सिचुएशन हो कि हम नाक से श्वास ले ही नहीं सकते हैं, तब उसको हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए रखा गया है। लेकिन अगर आप हमेशा ही मुंह से करेंगे तो आप देखेंगे आपके मुंह का शेप भी बिगड़ सकता है ना, जॉ लाइन भी चेंज हो सकती है। तो इसलिए ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज। और जब हमने अभी प्रैक्टिस किया, कोई हमको बता सकता है हमने 1 मिनट में कितने श्वास लिए? हाउ मेनी ब्रेथ पर? 3. यही स्मार्ट क्राउड के साथ वर्कशॉप करने का यही फायदा होता है, आपको अपनी मैथ्स करेक्ट ही नहीं रखनी होती है। वेरी नाइस। 3 ब्रेथ लिए, क्योंकि हमने 5 सेकेंड में श्वास लिया था, रोका था 5 सेकेंड, फिर छोड़ा था 5 सेकेंड, फिर बाहर ही रोका था। यानी कि 20 सेकेंड पर ब्रेथ, और 60 सेकेंड मीन्स 3 ब्रेथ। तो जब हम इतना गहरा लंबा श्वास ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने लंग्स को भी काम में लगाते हैं कि वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली पूरे एक्सपांड होए, हम पूरी एयर को ले पाए और बहुत ऑक्सीजन को ले पाए। और आपका जो प्रोफेशनल फोरम है, तो यहाँ पे डॉक्टर्स भी होंगे ही, तो वो सब जानते हैं कि हमारे स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन का क्या रोल है। तो अगर आप अच्छी ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ही। और अगर हम वर्तमान में रह रहे हैं तो हमारा भावनात्मक संतुलन, भावनात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा ही। सो दिस इज लाइक वन कंप्लीट पैकेज। आप लोग पैकेज की बात ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो दिस इज लाइक वन कंप्लीट पैकेज कि हम अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेल्थ को भी कैसे मेंटेन कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। सो ये हुआ। और हम अब आध्यात्मिक बात करें, वो शायद मैंने बातों बातों में आपको पहले ही बता दिया। धर्म क्या है, जैसे कि हिम्मत जी ने बहुत अच्छे से स्टार्टिंग करी थी, धर्म क्या है। हम धर्म धर्म बात करते करना लगे। अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप समता में रहते हो, समभाव में रहते हो, आप धार्मिक हो, आप धर्म कर रहे हो। और संभाव में जब आप कब रहोगे, जब आप बहुत पीछे और आगे नहीं चिंता करोगे, या पीछे की बातों को नहीं सोचोगे, स्मृतियों में नहीं रहोगे, वर्तमान में रहोगे। यानी संभाव में रहना, समता में रहना। एम आई मेकिंग सेंस? एम आई मेकिंग सेंस? यू कैन शो मी सम थम्स अप। आर वी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म? या मैं बोल रही हूँ, डिलीवर हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? ऑल राइट। सो इट्स, हम 10 मिनट अपने पास है। आई थिंक आज हम इतना ही रखते हैं। सिंपल बेसिक हमने थोड़ी थोड़ी चीजें करी। और हम, मुझे जैसे मैंने बोला था, मुझे ऐसा लगता है जानने से ज्यादा करना जरूरी, राइट? ठीक है, तो हम फिर एक प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले अगर आपके कोई सवाल है, तो हम पहले 5 मिनट्स क्वेश्चन आंसर ले लें, फिर हम एक प्रैक्टिस करें। अर्चना जी। सो आज आप इतना ही समझें। आज का टेक अवे अगर लेना है, समताल मीन्स इक्वल ड्यूरेशन में ब्रीदिंग करना, नाक से श्वास लेना। और अब आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको उसका आंसर दे पाऊँ। सो I would like to request Kanchan Siroya ji to please take up the questions asked by our participants. And I Yes, request all the participants to post your query in the chat box, or you can raise your hand too. Over to Kanchan ji. Jai Jinendra सभी को. So please raise your hands or post it in the chat box. Sneha ji is telling my throat is always problematic. Can this training help into solve this? Sudha ji, हाँ, क्या प्रॉब्लम I'm है? audible. हाँ, एकदम एकदम। स्नेहा जी, क्या? Her throat is problematic, so she wants it to solve it with Samtal Swas. Is it possible? क्या वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम होता है उनको? व्हाट इज द प्रॉब्लम? Sneha ji, please unmute yourself. Oh, she can't unmute. Yes, I'm. So, Sujaji, morning time, my throat gets away, like it becomes really hoarse. बहुत ही खराब हो जाती है voice. I take a lot of hot water, cinnamon water and all, but still doesn't help. So So, that's okay. does, See, this does practice can Samtal be. Swas helps?
दिस प्रैक्टिस कैन बी डन, कभी भी आप कर सकते हो, राइट? अगर अभी आपको इनिशियली लग रहा है कि सुबह सुबह मुझे करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ड्यूरिंग द डे टाइम बिफोर गोइंग टू स्लीप, दैट इज माय फेवरेट ऑल्सो, कि आप ऐसी अच्छी नींद लेके उठोगे सुबह, शायद धीरे धीरे आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो स्टार्ट डे टाइम में शुरू करो, इवनिंग में शुरू करो, धीरे धीरे आप देखोगे जब चीजें धीरे धीरे स्मूथ होने लगेगी तो शायद ये प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और आप पहले से कर ही रहे हो, यू आर टेकिंग हॉट वाटर, गार्गल आप कर ही रहे होंगे, सो दैट विल टेक केयर ऑफ योर थ्रोट, और आप ये प्रैक्टिस फिर सुबह भी कर पाओगे। थैंक Uh, Priyaji is asking, can we chant mantra while practicing box breathing? अभी मैंने स्टार्टिंग में ही किया था कि हम बहुत मल्टीटास्किंग नहीं है, पहले हम इसको साध लें। लेट्स फर्स्ट मास्टर दिस प्रैक्टिस, फिर धीरे धीरे हर आदमी ना अपना कुछ ना कुछ उसके साथ जोड़ ही लेता है। तो पहले इसको मास्टर करने की कोशिश करें। लेट्स नॉट इसके साथ ये उसके साथ वो, फिर धीरे धीरे आप कर पाओगे। मतलब जो इतने प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर हो गए हैं वो पूरी पूरी माला से इससे करते हैं। और आप अगर गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के प्रवचन सुनेंगे तो गुरुदेव बोलते हैं कि अगर आप श्वास के साथ माला करो, अगर 5 बार भी करो तो बहुत इफेक्टिव होगी। बट लेट फर्स्ट मास्टर आवर ब्रेथ, पहले हम इस पे फोकस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। Vikash is asking, for how many minutes should we practice it? And हम what is स्टार्ट, the best time to practice? बेस्ट इज एनी टाइम इज बेस्ट, यू नो, जब भी आपको लगे कि अभी मेरे पास 3 मिनट है, 4 मिनट है, 5 मिनट है, सुबह का टाइम तो बेस्ट है ही, लाइक नो क्वेश्चन आस्क्ड। आप 3 मिनट से शुरू करिए। और मैं अर्चना जी या कंचन जी के साथ शेयर करूंगी, ऐप है अपना प्रेक्षा मेडिटेशन का, जिसको डाउनलोड करके उस पे बॉक्स ब्रीदिंग रहेगा, वहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इट इज देयर फॉर बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, और जो ज्यादा अच्छा करने लगे एडवांस लेवल भी है। तो आप 3 मिनट से शुरू करिए, 3 मिनट्स इन द मॉर्निंग, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ना, वैसे आप सुबह उठने के बाद, सोने से पहले, और इन बिटवीन में भी, बिफोर योर फूड ऑल्सो, आप देखेंगे आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो गया। सो एज पर योर Uh, कन्वीनियंट आप कभी भी कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। Prasanj, you want to ask a question? And हाँ, Babita ji Chopra. या डज इट हेल्प इन एलर्जी अटैक्स? एलर्जी अटैक एकदम अगर होता है आपको तो जानकर, किसका क्वेश्चन है? बबीता चोपड़ा। बबीता जी, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हमको फीडबैक्स मिले हैं, स्किन सिरोसिस, मतलब इतने सारे मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, शायद उनमें से एक अगले आप भी होंगे। अगर आप रेगुलर करेंगे आप देखेंगे स्किन डिजीज में भी बहुत हेल्प करते हैं। एलर्जी अटैक इन द सेंस बहुत स्नीजिंग होती है उठते ही सुबह, उसमें एनी भी टाइम। करेगा, एकदम एकदम, अगर अंदर का मैकेनिज्म सही होएगा तो ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होने लगे एकदम। वन प्रोडक्ट और मल्टीपल बेनिफिट्स आप कह सकते हैं। हमको मल्टीटास्किंग नहीं होना है, लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत मल्टीटास्किंग है। ओके, थैंक यू। Prasanna ji, please ask your question. मधु जी का भी सौरभ हैंड जी का रेस्ड है, है। मधु जी। सौरभ जी का, इज देयर एनी ऑप्शन इन जी. आवर ऐप टू इंक्रीज टाइमिंग टू ऑफ एडवांस फ्रॉम 7 सेकेंड? हाँ सौरभ जी, ऐसा है कि शायद ऐसा है, अगर आप बहुत रेगुलर कर रहे हैं, आप 7 कर पा रहे हैं, तो आपके लिए एक और पोर्टल खुल जाता है जिसमें आप 10 सेकेंड कर सकते हैं। मैं फिर कंफर्म करके आई गेट बैक टू अर्चना जी, और मैं उनको शेयर करने के लिए बोलूंगी। मतलब दैट इज ओनली अवेलेबल फॉर द जो लंबा कर सकते हैं, इट इज नॉट देयर फॉर एवरीवन, पर ऐसा कुछ है प्रोविजन, मैं आपको पता करके बता दूं। Prasanna ji, please unmute yourself. प्रसन्न जी को को होस्ट बना दीजिए। उनको अनम्यूट कर दिया है. जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सुधा जी, ब्रिलियंट सेशन। जय जिनेन्द्र सिंह, थैंक यू सो मच। एक बेसिक क्वेश्चन था, आई डोंट नो, स्टूपिड भी हो सकता है, बट व्हेन यू से लॉन्ग ब्रीदिंग कैन हेल्प यू अब्सॉर्ब मोर ऑक्सीजन, हाउ डज दैट वर्क? हाउ डज दैट वर्क? मतलब आपको इसमें कंफ्यूजन क्यों है? पहले तो सिंपल क्वेश्चन हमेशा ज्यादा डीप और ज्यादा लोगों को कैटर करते हैं, यू नो, क्योंकि सिंपल चीजें ही ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन कैसे है कि लॉन्ग ब्रीदिंग से ऑक्सीजन? वापस एक बार रिपीट करिए आप अपना क्वेश्चन।
अनम्यूट हो गए फिर से आप, प्रसन्न जी। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? yes Sudha ji. So yeah, basic सा question है basically, जब हम श्वास लेते हैं बेसिक तब ये बेसिक लिंक। सॉरी टू डिस्टर्ब, बेसिक इज बेस्ट, बोरिंग इज बेस्ट, जो रोज की एकदम। थैंक यू। सो जब जब व्हेन वी नॉर्मली ब्रीथ, हम लोग ऐसे लेंथ ऑफ द ब्रेथ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते कि हाँ लंबा है छोटा है, यू नो, at that stage we just breathe and it's a very involuntary action. राइट। जब हम बोलते हैं कि लॉन्ग ब्रेथ लेने से ऑक्सीजन ज्यादा अब्जॉर्ब होगा, तो उसका कुछ साइंटिफिक या is there a certain basis by which we are saying by taking longer breath we absorb more oxygen versus the normal breath size? I don't want to call it a smaller breath because I don't know if it's a smaller breath really, but when we say इसमें 5 सेकंड ले रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में अब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन का अब्जॉर्प्शन ज्यादा कैसे हो सकता है? दैट वाज द क्वेश्चन। सो इट्स नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, और इफ यू आर कंफर्टेबल प्लीज पुट योर कैमरा ऑन। सो आपने जैसे बताया, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग माय अटेंशन टू दिस। ब्रेथ इज वन थिंग जो वॉलेंटरी भी है और इनवॉलेंटरी भी, राइट? जब अभी आप श्वास ले रहे हैं, मैं श्वास ले रही हूँ, इनवॉलेंटरी, हमारा ध्यान नहीं है। लेकिन जब हमने समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग किया, हमने क्या किया? वॉलेंटरीली, माइंडफुली, फोर्सफुली उसको लेनदेन किया। आप कभी बीच पे गए हैं? प्रसन्न जी गए होंगे 100%। आई कांट सी यू, आई एम टॉकिंग टू अ पिक्चर। इफ कंफर्टेबल प्लीज पुट योर कैमरा ऑन। तो जब आप बीच पे गए होंगे, आपने देखा होगा, थैंक यू सो मच, आपने देखा होगा जो लहरें किनारे पे आती है, छोटी छोटी और बहुत आवाज करती है ना? बट जब आप भीतर जाने लगते हैं, जहाँ पे कोई वेव्स नहीं है, डीप है और शांति है, ये वाला ही चीज हुआ। और जब जैसे आपने शायद स्टार्टिंग से ज्वाइन किया था सेशन को, जब आप अनम्यूट नहीं कर सकते, तो जैसा कि आपने पूछा कि ऑक्सीजन का कैसे होता है, जब आप ब्रीद इन डीप कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप टाइम ज्यादा दे रहे हो, आपके लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं, और हमारे लंग्स में एक गुच्छे के जैसे, अंगूर के गुच्छे के जैसे एल्व्यूलाई होते हैं, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और वहां के हर एक एक एल्व्यूलाई तक हमारा ऑक्सीजन जाता है। और हम जब डीप ले रहे हैं, आप एक बात बताइए, जब छोटे श्वास लेंगे, अगर आपकी कैपेसिटी है 6 लीटर ऑफ एयर इन योर लंग्स, लेकिन जब आप छोटे श्वास लेंगे तो कितना ले पाएंगे आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। Please unmute. यस, बोलिए सुधा जी। आई मीन काउंट वैसे कुछ है नहीं कि कितने श्वास ले सकते हैं, probably somewhere around maybe 40-45 40-45 ब्रेथ पर मिनट आप ले रहे हैं, आप per ऐसा? minute, या उससे ज्यादा भी होगा। हाँ, तो ऑब्वियसली तो दैट इज अ वेरी, मतलब ऐसी सिचुएशन है जब आपको वार्निंग वाली सिचुएशन है। यू शुड ब्रिंग योर ब्रेथ टू 15, क्योंकि जितना छोटा श्वास लेंगे ना, उतना ही आप अपने लंग्स को कम एक्शन में रख रहे हैं, कम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, क्योंकि आप जल्दी जल्दी वो काम कर रहे हैं। अगर आप लंबी देर श्वास लेंगे, मीन्स यू आर इनहेलिंग मोर एयर, मोर एयर मीन्स मोर ऑक्सीजन। आप जो पूछ रहे हैं मैं समझा पा रही हूँ आपको, आई गेट इट, आई गेट इट। कि हम जब लॉन्ग ब्रीदिंग करेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन कैसे लेंगे, आप यही बोल रहे हैं? What are you doing? एग्जैक्टली। When you are inhaling, what are you doing? You're taking in the air which is filled with oxygen, right? So if you're taking less air, to means less oxygen. If you're taking more air, means more oxygen. नहीं, अगर जैसे हमने बलून से कंपेयर किया, आपने बलून को 2 सेकंड तक हवा भरी, थोड़ी जाएगी, लेकिन अगर आपने 5 सेकंड लगाया, ज्यादा जाएगी। हाँ, वो एक बार में ज्यादा जाएगी, बट ओवरऑल तो बलून उतना ही बड़ा हो ही जाएगा, राइट? विद तो द अमाउंट ऑफ ओवरऑल एयर दैट वी फिल आप इन। क्या कर रहे हो? आप अभी आपने 3 मिनट तक प्रैक्टिस करा, आपने क्या किया? हमारे ब्रेन में ना रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, नॉर्मली तो आपको ध्यान नहीं रहता है। जैसे कि समझिए आप अपने घर पे हो, आपको गेट खोलना है, वो हैंडल को आपको देखने की जरूरत है? नहीं जरूरत है ना, बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड देयर।
तो जैसे ही आप समताल श्वास प्रैक्टिस करते हो, धीरे धीरे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो। और कोई भी सिचुएशन आती है जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, सबसे पहले डायरेक्ट कनेक्शन है विद आवर ब्रेथ, हमारी ब्रेथ छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको ट्रेन करके रखा है, आप मूवीज देखते हैं, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, Yes. राइट? वो ऑल इज वेल इज अ सिग्नल, नोटिफिकेशन कि भाई डरो मत, सब ठीक है। तो वो ब्रीदिंग जैसे ही नॉर्मल होगी, स्ट्रेस को हैंडल करना सीख जाओगे। दैट इज द ओनली थिंग। क्यों आपको समताल श्वास करनी चाहिए, क्यों आपको गहरी लंबी सांस लेनी चाहिए? बिकॉज लंबी सांस और स्ट्रेस एक डायरेक्ट कनेक्शन है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप गहरी सांस ले रहे हैं और आप स्ट्रेस में रहेंगे, आप गुस्से में रहेंगे, कभी नहीं हो सकता। I get it. Thank you. थैंक Thank यू you so सो much, मच। Sudhaji. तो दिस वाज Sorry. नॉट अ बेसिक क्वेश्चन, आपने पूरा सेशन को समराइज कर दिया विथ योर क्वेश्चन। थैंक My यू फॉर pleasure. आस्किंग दिस क्वेश्चन। Thank you. ऑलराइट, Thank you so सो much. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। सो डू वी जी, हैव 5 मधु minutes? जी प्लीज, आई मधु जी प्लीज कंचन जी, आस्क अ क्वेश्चन। आई थिंक कंचन हाँ, जी, वी आर ऑलरेडी 8-4 और मुझे लगता है हमको एक प्रैक्टिस करनी चाहिए, इफ यू डोंट माइंड। ओके, ओनली लास्ट क्वेश्चन, मधु जी has been asking ऑलराइट, for long. ऑलराइट, डन। मधु जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैम मेरा आप जैसे आज मैं सेशन मतलब हम अभी कुछ दिनों से कर रही हूँ, मतलब कुछ ना कुछ परीक्षा ध्यान में से आ रहा है, लेकिन मेरा एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं स्टार्ट की हूँ जस्ट 3-4 महीने में, एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे और अंदर जो आप बोलते हैं ना, सांस को ऑब्जर्व करो या देखो या मतलब महसूस करो, तो वो नहीं हो पा रहा है मेरे से। कोई बात तो नहीं, क्या वो सबको कभी टाइम लगता है। प्रैक्टिस करते करते हो सकेगा? एकदम एकदम एकदम, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट। नहीं हम तो पहले से परफेक्ट है। अगर हम एक बार में ही सब हो जाता तो हम सभी योगी हो जाते हैं। नहीं, इट टेक्स टाइम, पेशेंस एंड कंसिस्टेंट। अगर आप रोज करेंगे, और इसमें और एक आप कर लें कि एक टाइम और एक स्थान, बिकॉज प्लेस हैज एनर्जी एंड टाइम हैज मेमोरी। तो अगर आप रोज एक टाइम पे एक जगह पे करना शुरू करेंगे, जैसे हमको खाने की भूख का नोटिफिकेशन आता है ना कि भाई 1 बज गया, खाने का टाइम है, वैसे ही समता हाँ स्वास्थ्य साथ भी होएगा। आप अपना एक टाइम और एक जगह कि मुझे करना ही है, चाहे मैं 3 मिनट ही करूं, मुझे करना ही है। धीरे धीरे देखेंगे ये सबके साथ होता है मधु जी, कि किसी को श्वास छोड़ के नहीं रोक सकते क्योंकि हमको आदत नहीं है। हमको लगता है ये अपने आप ही हो रहा है, इस पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है ना? तो जैसे ही आप हाँ फोकस वहां लेके आएंगे, रोज करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे अपने आप ही जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है हो जाएगा अपने आप। मतलब आप होल्ड नहीं कर पा रहे, बोल रहे, राइट? हाँ हाँ। तो आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आप 2 सेकंड से करिए, 3 सेकंड से करिए, कोई कंपटीशन नहीं है। ये वाला नहीं ऐसा हाँ फील्ड है जहाँ किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है कि दिनेश जी 5 सेकंड कर रहे हैं, 7 सेकंड कर रहे हैं, कांता जी 10 मिनट कर रहे हैं, 10 सेकंड कर रहे हैं, मेरा नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, स्टार्ट विथ 2 सेकंड्स। ग्रेजुअली आप एक हफ्ता 2 सेकंड किए, फिर आप एक हफ्ता 3 सेकंड, 4, 5 पे आ ही जाएंगे। इससे क्या मेरी लंग्स वाली जो जैसे हाफनी और वो सब होती है, वो क्या एकदम ठीक हो सकेगी? एकदम हो सकती है। जब आप श्वास को भीतर रोकना शुरू करोगे, वो जो हांफने आता है, सीढ़ी चढ़ते हैं, एकदम ठीक हो जाएगा। बट टाइम देना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मधु जी, बहुत आभार कितने उसमें। थैंक यू सो मच। तो अब हम एक 3 मिनट की प्रैक्टिस ही करें, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 8-7। यस सुधा जी। रक्षिता जी, डू हम 3 मिनट करें, 5 मिनट करें? Yes, yes, Sudha ji, please. We are all here. Please. ऑलराइट, चलिए। तो फिर से टाइम फॉर प्रैक्टिकल, बिकॉज नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्विवेलेंट टू नॉट नोइंग, राइट? जानते और करते ही नहीं तो जानने का क्या ही मायने। तो चलिए हम करते हैं फिर से। वेरी गुड कांता जी, सिट नाइस एंड टॉल। आपकी मेरुदंड गर्दन सिर सीधी एक रेखा में, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, हथेलियां आसमान की तरफ, चश्मे पहने हैं तो उतार लें, आंखें कोमलता से बंद, और पूरे शरीर को रिलैक्स फ्रॉम द टिप ऑफ योर टोज टू द टॉप ऑफ योर हेड। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें।
और सारा ध्यान आती जाती श्वास पर। Follow your inhales and exhales. Notice how your body feels, how your mind feels. और अब हम सब समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग करेंगे। समताल श्वास परीक्षा के लिए अपनी श्वास को मेरी आवाज के साथ जोड़ें and just follow the instruction. Inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold. भरे श्वास भीतर ही रोकें, छोड़े श्वास बाहर ही रोकें। भरे श्वास भीतर ही रोकें, छोड़े श्वास बाहर ही रोकें। Inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold. One last time, inhale, hold, exhale, hold. Relax and resume your normal breathing. और इस सुंदर प्रभावकारी प्रयोग से आपके शरीर मन पर जो भी परिवर्तन हुए हैं, जो प्रैक्टिस से पहले आपके शरीर और मन की स्थिति थी और प्रैक्टिस के बाद जो आप अनुभव कर रहे हैं, उस एक एक एक्सपीरियंस को, उस एक एक अनुभव को एक्नॉलेज करें। धीरे धीरे, व्हेन यू फील रेडी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। जैसे कि हमने अभी किया, ये आप कभी भी कर सकते हैं। लाइक जो बच्चे हैं एग्जाम से पहले कर सकते हैं, आपकी कोई मीटिंग है, कुछ 2-3 मिनट का ब्रेक है, आप कर सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर रहे हैं, अपने फ्लाइट फाइट सिस्टम को
सुस्त कर रहे हैं और अपने रिजुमिनेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं। और जैसा कि ऐप के बारे में बताया, आई विल शेयर इट विद कंचन जी और अर्चना जी, जो ग्रुप में शेयर कर देंगे कि हाउ टू डाउनलोड एंड हाउ टू यूज द ऐप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप सबको प्रेक्षा ध्यान के इस सुंदर प्रयोग के बारे में बता पाऊं और उसका अनुभव करा पाऊं। थैंक यू सो मच, कृतज्ञ से। Wonderful session, Sudhaji. Can we ask the remaining question or? क्या बोल रहे हैं आप Hello? कंचन जी? हाँ कंचन जी, Can we ask the remaining questions which are left behind? हम कर सकते हैं बट इट्स ऑलरेडी 8:15। अगर हम आप रिटर्न मंगा लें, मुझे लगता है वो बेटर होगा, Okay, नहीं? but they can share in the group. नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। Yeah, thank you, Kanchanji, for wonderfully handling the question answer round. Now, I would like to request Rekha ji to please give vote of thanks to our wonderful, most calm and expert trainer Sudha ji. Over to Rekha ji. थैंक यू सुधा जी। आचार्य प्रवर के चरणों में भाव भरा वंदन। डॉक्टर रजनीश मुनि, आध्यात्मिक पर्यवेक्षक टीपीएफ के चरणों में वंदना। The program today, actually, after getting box breathing with the people today in the group, I really am feeling very calm today. So as we are to the closing, I'm carrying immense gratitude in my heart for to share with everybody, especially the gratitude towards Sudhaji, a wonderful speaker. She just not only enlightened our mind, she brought something new which we came to know about box breathing. Many people were not aware of that. So thank you, Sudhaji, very much. Thank you to our national president in the busy morning. He joined us, especially on Sunday. Our zonal president, Gandhi Saab, thanks to him. A warm thank you to the driving force behind this program is Archana ji, who really wanted this beautiful program to be organized by TPF Femina. I would like to extend my thanks to Team Femina, under the leadership of Rakshita ji, who has planned and promoted the program so well, and definitely their hard work made today seamless and beautiful. And special thanks to all the joinees. With their presence, the program was so graceful. And to everyone here, let's keep inspiring, practicing box breathing, Samtal Swash, so it will boost the strength in us and keep empowering. And Sudhaji, especially, I would like to mention, you made my day by saying, we are already perfect. So let's practice makes man perfect. Thank you so much. All from my side. Thank you. Om Arham. Thank you, Rekha ji. Very nice to hear from you, such wonderful words. And Dinesh ji हैं West Zone के हमारे president. Yeah, तो दिनेश thank जी you. धोखा Yeah. जी से Praveen प्रेक्षा ji, मेडिटेशन के चेयरमैन, उनको भी थैंक्स। I forgot दिनेश जी। It's And we have Dinesh Chopra ji also. He's our West Zone president. We thank have you Praveen so Siroya much, ji Dinesh. from East Zone 1. And we have Naresh Kathodia ji, our NEC member. And Treasurer. He's a Yes, Naresh ji national I is thank treasurer. all the dignitaries from national, zonal level. If I'm leaving anybody, thank you so much. And special thanks to my team, Femina. It was a great experience, amazing experience. And Sudhaji, it was great. Truly, Rekha ji. Sudha ji, मैं ये Mohit कहना ji, चाहूँ सेम हियर रेखा जी। ये सेशन आई वुड से इट वाज नॉट वन वे सेशन, इट वाज वेरी इंटरेक्टिव एंड हमने एक्सपीरियंस किया। हमने बॉक्स ब्रीदिंग तो प्रैक्टिस किया ही, बट आपकी वो जो पर्सोना है, पीसफुल कामनेस, वो हमने एक्सपीरियंस किया। तो आपने जो ऑरा ट्रांसमिट किया है आज संडे मॉर्निंग में, तो लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू सुधा जी एंड द होल फेमिना विंग। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। गुड टू सी लाइक मॉर्निंग में इट्स रियली डिफिकल्ट, जैसे स्नेहा जी बोल रहे हैं, वर्ड नहीं बाहर आ रहा है, बट वी ऑल कुड गेट आउट ऑफ द बेड एंड कहीं ना कहीं हम इसको पार्टिसिपेट करें। दिस शोज आवर एंथुसियाज्म और हम आगे ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड लुकिंग Archana फॉरवर्ड ji, I टू। would like to take a minute. या श्योर प्लीज। Yeah.
Sudhaji, I cannot tell you the positive energy and the vibe that you have shared today. The moment I saw your background, okay, it's so soothing, so energizing. And upon that, your personality, your persona, and your calmness, the way you have handled the session, at times we feel, where are we running? And after seeing you, I am trying to calm down myself. Lovely, beautiful smile, and you took the session through so nicely and in such a calm and melodious manner, I would say. Archana ji, thank you so much for giving Team Femina this opportunity to do the session with Sudha ji. This is going to be one memorable one for me rest of my life. Thank you so much. This Thank you, means Rakshita ji. I would Special thanks to like to Mohit ji invite. also for the Zoom support. Mohit ji के Yeah. लिए भी special thanks to the Zoom support. Okay. I would like to invite Dinesh Chopra ji, our West Zone President, to please share your wisdom words. Over to Dinesh ji. Dinesh ji, please unmute yourself. दिनेश जी की आवाज नहीं आ रही है. जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र. हाँ, अभी आ रही है. जय Yes, yes. जिनेंद्र. I was with मुनीश्री only. रचिश मुनि के साथ विहार कर रहा था अभी उचरी में. तो मुनीश्री को भी मैंने अपना प्लेक्सा ध्यान के बारे में सब बताया. तो मुनीश्री also was all मतलब सबके लिए बहुत was happy कि सुबह 7 बजे मैंने बोला 75 members are online. तो मुनीश्री ने बहुत मैंने उनके अपने प्रति कृतज्ञता करी. So that's all. मैं रास्ते की सेवा में था उनके साथ उचरी में. बट आप अर्चना जी का बहुत फोर्स था इसलिए मैंने आज ज्वाइन जरूर करा. थैंक यू अर्चना जी फॉर इनवाइटिंग अस. थैंक यू दिनेश जी. अब गुरुदेव पधारे हैं आपके क्षेत्र में, तो हम सब भी आपके मेहमान बनने वाले हैं जल्दी. नहीं और सब हम साथ में बन के सबको मेहमान नवाजी देंगे. अपनी जोन में और आ आप रहे गुरुदेव. राइट, गुरु सेवा में रहते हुए भी आप लॉग इन कर पाए. मुनीश्री कम टू अहमदाबाद. वो परसों आ गए थे अहमदाबाद. अभी वो यही है, अहमदाबाद भी विराजेंगे रजीश मुनि. ग्रेट. ठीक है, तो हमारी उनके साथ ही था दिनेश जी, हम रजीश मुनि सबकी को. तरफ से. हाँ जी हाँ जी. बस अभी तो गोश्री के लिए बाद में वो चले गए. मैं वापस अपने घर के साइड आ रहा हूँ. बट 1 घंटा उनके साथ ही था. उनको पूरा सेशन कुछ मैंने बताता रहा रास्ते में. दिनेश जी, ये हिस्टोरिक मूवमेंट है. आई थिंक पहली बार टीपीएफ में मॉर्निंग में 7 AM कोई सेशन हो रहा होगा. सो आई थिंक फेमिना हैव चोजन दिस टाइम एंड इट्स रियली अ हिस्टोरिक मूवमेंट. हमने ये भी एक्सपीरियंस करके देख लिया. पण अर्चना जी, आपका डेडिकेशन इज हैट्स ऑफ. दिनेश जी, आपने टीम एकदम खतरनाक बनाई है. मतलब रक्षिता जी बोलो, अर्चना जी बोलो, सब अपने काम में इतने एक्टिव है ना. मतलब हमको भगाते रहते हैं. गुड. Keep Sorry, the we are movement. lucky enough today. Aaj Dinesh ji was there with Rajesh Muni ji, and he could be a part of this event also. So thank you so much, Dinesh ji, to you too. Thank you. Jai Jinendra. Thank you so much. Again, lot of gratitude to Sudha ji, and thank you Rakshita ji for becoming a very I would say backbone of this whole Femina team, and making them active, and it's really nice. I mean to see. I thought 7-8 लोग से ऊपर नहीं होंगे सुबह. एंड ये ऐसा टाइम है कि हम लोगों को कॉल भी नहीं कर सकते कि आप उठिए और ज्वाइन करो. तो दिस इज लाइक ऑर्गेनिकली जो होमवर्क हुआ है उसका ये आउटकम हम देख रहे हैं. So it's a big congratulations to all of you, and it's a total team effort, Archana ji, from everybody who has joined here and who has been working totally behind the scenes for this, including you, me, and the entire team. So we deserve, all of us, for everybody, it's a big Om Arham. Thank you guys. Without your support, it wouldn't have been possible. And I would like to share 18th of May को blissful breathing का series आ रहा है with Futura. So we'll share the details with you. Stay tuned and keep meditating. If you have any query, then please feel free to share with us. We'll pass this to Sudha ji, and I think Garima ji has something to say. So yes, Garima. Yeah, please. Please unmute yourself, Garima ji. Am I audible? Yes. Yes.
सिंस अपना सेशन ये एंड हो रहा है तो हम चाहेंगे कि एक क्लिक हो जाए सब पार्टिसिपेंट्स की, ऑल ऑफ देम कैन ओपन द कैमरास, प्लीज पुट ऑन योर कैमरास। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे अभी, many are still left. If you all please put on your camera, please. It was such a wonderful session, full of energy. Garima ji, in the meanwhile, I would like to thank one of my friends, Krishna Kumari, who is from BNI Hyderabad. She has also joined the session. Krishna Kumari, madam, thank you so much. I really appreciate your taking out time and joining. It's really fantastic to have you here. Thank you so much. Okay. So on the count of 3, 3, 2, 1, and go. Just a moment. Hold on. Okay. Thank you. Thank you, Garima ji. So, Rakshita ji, we are Rakshita done. ji, can Yeah. we just give 1 minute to Krishna Kumari, madam? Would you like to say something? Sure. Sure. Can you unmute, please? Yes, madam. Yes, Krishna Kumari, ma'am, please tell. No, she's not unmuted. ऋषभ दुक्कड़ थोड़ी है. Krishna Kumari, ma'am, please unmute. We can't hear you. Ma'am, you're not unmuted yet. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Am I audible now? Yes, yes. Yes. Thank you, Rakshita ji, to introduce this box breathing for me. It is very nice session. I will practice now onwards. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Yeah. Yes, So- Archana ji, over to you. Yes. बारंबार कृतज्ञोस्मि to our expert trainer Sudha ji and गुरुदेव के प्रति कृतज्ञोस्मि. आपका दिन सबका हम सबका दिन मंगलमय हो. दिनेश जी, should we wind up? या Yes, आपको yes. कुछ? We should wind up. कृतज्ञोस्मि. Okay, कृतज्ञ. पूज्य गुरुदेव के प्रति Thank you so कृतज्ञ. much. पूज्य Yeah. गुरुदेव. Om Arham. Om. Om Arham. Thank you.